Hello, 7th edition of OCLF Nagpur by the Raisoni Foundation, powered by us. And I'm so honored and humbled to be here. This is my 7th visit that I've been here from edit 1 to 7th and wishing it's become my annual visit. Today I have a very, very special guest, and we have the girl, Ila Arunji, and we all know about Choli Ke Piche, but her book is called Parde Ke Piche. Now I am going to give it over to Sharon. Sharon, Parde Ke Piche, a book which is, title is Parde Ke Piche, but written in English. Hi, everybody. So we have a dynamic session today. Here is a path-breaking artist from the hinterland of Rajasthan, creating monumental strides in career, imagination, navigating new directions. And of course, we are going to hear her music as we all have done. Hopefully, if the AVs work, we shall treat you to some great sounds and music. But today, primarily, we're here to celebrate Parde ke piche kya hai. So that's what Ilaji is going to talk to us about. But let me build the tension. The book is beautiful, and I would urge you to please take Ilaji's signature, buy these books. It saddens me that we're not reading as much as we used to, but this book, I swear to you, is fabulous. So can I take a minute of your time and read a little bit about this amazing prose? I've got the mic and I'm just going to take 2 minutes to show you the wonderful style of Ilaji's word choreography. Unforgettable. This is a chapter that she wrote on Om Puri Ji. Unforgettable. The simplicity and bluntness of a villager, a deep-throated voice that held you spellbound, and a smiling face. That is how I envisage Om Puri. I met him at NSD for the first time. And our association grew with the films we did together. Susman, Yatra, Antarnad, Ardh Satya. And our friendship grew deeper and deeper. We started visiting each other at home. But I had the greatest time when we did the film, West is West. After the success of East is East, the producers decided to make a sequel to that, aptly titled West is West. And when they were casting, they called Ilaji for an audition. And one of the primary questions they asked her was, do you speak Punjabi? And this lovely, honest artist said, no. But to give her credit, she mastered the art of the language, and the rest is history. Because the challenge, you see, the Punjabi spoken in Pakistan, where a lot of the film was based, is a mix of Multani and Punjabi, quite different from the Punjabi spoken in India. Om said, my language was better than his. From that time, wherever we traveled for the promotion of the film or for other film festivals, to Toronto, England, Abu Dhabi, Om always mentioned how I had mastered an alien language for my role. We spent a lot of time together. But his time among us was very short. On January the 6th, 2017, he passed away at the age of 66, leaving behind several half-finished films. That day, I lost not just a friend, but a Rakhi brother too. I wait for a phone call asking me to sing our favorite song,
Many evenings when he was in a good mood, I'd get a call from him saying, Ila, sing that song for me. Songs like Tanak, Chadiyali, Kanchali. And when he would listen to me, he'd put me on speakerphone and make the whole world listen to my song. But today there is no phone call, no demand for the song that had brought us close together. When he put me on speakerphone, I often wondered who could be listening to my song. But today I wait for that call and his deep voice saying, Ila, sing that song. I still have that rumal or hanky that he wove during the shooting of Susman. Om preferred to stay in the village among the weavers to learn how to weave. He made one for Shabana, one for Nina, one for Sham, and one for me. I was surprised and moved when a few days ago, his wife Nandita gave me a scarf woven by the same weavers company called Ramulu. Memories are made of this. Thank you. That's beautiful. And my son has only one Bua, and that is Ila Bua, because she was Om's Rakhi sister. Now, Sharon, shall we call the Rumal girl over? Absolutely. Do we want to give a nice big round of applause for the lady herself? Ila ji. रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे ओ रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब नमस्कार। ये जवानी का गाना था, अब मुझसे कोई उम्मीद करना मत। एक शेर है, उम्मीदें करोगे कम तो सदमे भी होंगे कम। तो लेट्स स्टार्ट। आपको जो पूछना है आपको पूछना है, आपको पूछना है आपको पूछना है, आप पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगी। पर मुझे जानने के लिए आपको ये किताब तो पढ़नी ही पड़ेगी, पर्दे के पीछे। हाँ, दो ही mic. You don't need a mic. She will. We will keep sharing the mic. So, Parde ke Piche is a very interesting title. Of course, people always start off with your number one hit song. Yeah. So, but it's a Hindi title. It's in English. The book is in English. So, why this? आप लोग बता सकते हैं कि महाभारत किसने लिखी थी? करेक्ट, वेद व्यास ने लिखी नहीं थी, पढ़ी थी। तो ऐसा हुआ कि एक छोटी सी कहानी हमारे भी बीच में, मेरा हाथ जो है, शरण माफ़ करना, मेरा हाथ अंग्रेज़ी में तो बहुत तंग है। तो इस पर्दे के पीछे का राज ये है कि एक बार ब्रह्मा जी ने वेद व्यास से कहा कि भाई तुम्हें तो पूरा पता है, ये सारा कुरु और पांडवों की फैमिली के हो, तो तुम इस डेडलाइन में महाभारत लिख दो। उन्होंने कहा देखिए मैं बोल अच्छा सकता हूँ और जिसमें मैं लिखता हूँ उस भाषा पर मेरा अधिकार है, पर संस्कृत या इतनी जल्दी जो डेडलाइन दी है वो होगा नहीं। तो ढूंढा गया, पूरे वर्ल्ड में ढूंढे गए कि कौन इतनी जल्दी लिख सकता है। तो वो श्री गणेश जी के पास गए और गणेश जी ने फिर उसको फटाफट लिखा और इतनी जल्दी लिखा कि अगर एक दंत है ना तो कहते हैं उनकी कलम भी टूट गई थी, तो फिर उन्होंने अपना दांत उखाड़ा और उससे लिखा। सो मैं हमारे इनार के इस ब्रह्मा जी इस पेंगुइन ने मुझसे कहा अंग्रेज़ी में लिखो। मैंने कहा भाई क्यों, जब मैं हिंदी में बोलती हूँ, हिंदी में सोचती हूँ, हिंदी के ही मेरे हैं तो क्यों। पर उनका नहीं, आपको लिखनी पड़ेगी। सो Ganesh ji is Anjula Bedi. As you read the title, it is written as told to Anjula ji. पहले मैंने अपनी किताब हिंदी में लिखी, which is yet to be published, और फिर मैंने अपनी चीज़ों को अंजुला जी को बताया और फिर वो आपके पास अंग्रेज़ी में आ गई। उसका कारण ये था कि यंगर जनरेशन के हाथ बहुत तंग हैं हिंदी में,
सेकेंडली वर्ल्ड वाइड मेरे फ़ैन हैं, उनको भी हिंदी नहीं समझ में आती है, इसलिए कोई तो रास्ता ढूंढ नहीं था। तो अब आप किताब खरीदें और पढ़ें और देखिए कहाँ तक ये सफल है। Ela ji or Ela? भैया इला ही कहिए आप। Ela. जी। I always call her Ela. But she's my nanad, by the way. या दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द रीज़न जो शरण आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और ओमपुरी जी का और मेरा एक ख़ास रिश्ता शुरू हो गया था NSD से ही। उसके बाद हमने बहुत सारी श्याम बाबू के साथ यानी श्याम बेनेगल के साथ फिल्में करी। और ओम जी भी बहुत ही खुरदरे मट्टी से जुड़े हुए इंसान थे, इसलिए हमारी जो दोस्ती है या जो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती चली गई। और ओम जी लड़कियों के मामले में थोड़े से कमज़ोर थे, तो फटाफट दिल फेंकते थे इधर उधर। तो एक बार जब इनके बच्चा हुआ, वो कहाँ बैठा है ईशान, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तो ओम जी ने कहा भैया नहीं, सिर्फ एक ही मेरी बुआ होगी, इला अरुण, नीना गुप्ता टाइप सब मेरी मौसियाँ हैं, सो आई कैन फ्लर्ट। सो फ्रॉम दैट डे ये मेरा भतीजा है और मैं इनकी ननद हूँ। प्लीज़ क्लैप ऑन इट। Nanad ji, I have read the book. I've known Ela for so many You years. have to keep your mic like this. Okay, I have read the book. Thank you, Nanad ji. I have read the book and I have known Ela for years. And the way she speaks, this book is literally like she has written it. In fact, I told Angela ji that no one could have translated her thoughts, her emotions, and her language better than you. While reading it, I kept thinking it was Ela Arun who had written it, not Angela, not as told to Angela Bedi. So it's very much you. One thing which is at the beginning of the book, you know, you have, which you've signed also, Adesh mein, आवेश में विवेक मत खोना। Vivek mat khona. This is like a sound which continues in an entire book, chapter after chapter. Avesh mein Vivek nahi khona. Tell me about it. It is, your mother always told you this, right? देखिए जब आप किताब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग 7 बहनें थीं और मिडिल क्लास की एक महिला की अगर थोड़ी देखने में अच्छी लड़कियाँ पैदा हो जाएं तो वो किस तरह से उन्होंने एक क्लैपर बोर्ड बना रखा था कि भाई ये थोड़ी बड़ी होंगी, स्कूल से बाहर जाएंगी, थोड़ा आप लोग समझ जाएंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पिएंगे, कुछ इधर उधर एक्साइटमेंट हो सकता है। उनका एक क्लैपर बोर्ड ये था, आवेश में विवेक मत खोना, यानी कि कोई ऐसा टेंडर मोमेंट आ गया या ऐसा कोई एक्साइटमेंट लाइफ आ गया, विजडम को हमेशा प्रवेल करना। और ये उन्होंने जाने कैसा शब्द कहा कि मेरी ज़िंदगी में इश्क होते होते हमेशा क्लैपर बोर्ड आ जाता था, आवेश में विवेक मत खोना। फाइनली मैंने एक बार नीना गुप्ता से कहा, जब उन्होंने अपनी सेकंड मैरिज करी तो उनके हस्बैंड का नाम है विवेक, मैंने कहा यार तुमने अच्छा आवेश खोया, विवेक अच्छा लड़का है। तो ये जो क्लैपर बोर्ड है वो एक मेरी माँ की सिखाने का जो तरीका था बहुत संवेदनात्मक था, बहुत मुहावरों का वो इस्तेमाल करती थी। अगर कभी चाय का कप लेकर जा रहे हैं और चाय गिर गई तो पीछे से आवाज़ आती थी, अधजल गगरी छलकत जाए। अब बताइए आप, डांटने का इतना सुंदर है कि मन करता है एक बार और प्याला लुढ़काया जाए। तो हम लोगों की भाषा में भी ये जो एक मुहावरे या ये लोकोक्तियाँ जो आई हैं वो माँ की वजह से आ गई हैं। और इवन योर फादर व्हेन जब चाय बनाते थे सुबह, हाँ वो तो पीयूष ने लिखा है, माय ब्रदर, जिनके बारे में आप सेशन करने वाले हैं, कि ये दोनों जल्दी उठ जाते थे हमारे माता पिताजी, और वो शायद उन्होंने हमें भी सिखा दिया कि मैं 4 बजे कोयल और कौवा जब बोलता है उसके साथ ही उठ जाती हूँ। उस ज़माने में ये दोनों पति पत्नी सोचते थे कि इन 9 बच्चों से कैसे टाइम थोड़ा चुराया जाए, तो बच्चन साहब की मधुशाला सुनाते थे, ये सुनाते थे। वो चुपके से चाय बना के लाती थी, तो वहीं से मैं बिस्तर पे लेटी लेटी मेरे को पता पड़ जाता था। मैं कहती थी अम्मा चाय पकाई क्या। इस पर मेरे फादर ने एक, इला मेरा नाम है पर घर में वो लोग लीला लीला भी करते थे, तब वो कहते थे लिल्लो पड़ी बिछौना पूछें
अम्मा चाय पकाई क्या। तो ये एक बड़ा कवि का तरीका था कि चाय पकाई, और उनको मेरे मुंह से अच्छा लगता था क्योंकि पकाना शब्द एक बच्चे के मुंह से, ये एक्चुअली उर्दू का लफ्ज़ है, तो वो वहीं से शुरू हुआ। और मेरे को लगता है सब भाई बहनों में भी जो थोड़ा बहुत भाषा के प्रति जो लगाव आया है, उसकी देन हमारे माता पिता जी को है। I'm going to read a small passage from, it's about her birth date, okay? There are several vivid memories of my childhood which I don't think I can ever forget, but one which stands out is my argument with my mother about my date of birth, which lingers as a special conversation that carried on till the end of her life. And now I had the blue diary in my hand and a date crossed out. The world knows my birthday as 15th March, but my mother would often say, Ela, I can say with certainty that March 15th is not your birthday. I would retort, then do you mean that I have made up this date? This was always followed by the same explanation that when school admissions were taking place, my father was out of town and had deputed his friend Mishri Lal Jain to get us admitted into school. She would say, so he must have entered this date in the form. Horrified, I would say, are you saying that my father does not know when I was born either? This argument between us carried on all her life. For years, I quarreled with my mother about the date of birth, but she would often just pass it off as a joke. Sometimes she would say, remember, you are my 6th offspring, and a girl at that. My mental turmoil was worse than my physical discomfort. There had already been 5 girls born before you and 3 after. I would say, so why did you give birth to girls only? You needn't have. 8 daughters. Either Devki had them or my mother. This would embarrass my mother. Have some shame, she would say. I did not realize that my entire family was involved in confirming my date of birth. I was really surprised when one day my sister Binnoji, who was living in Bhopal, called me up saying, I have finally found your date of birth. I said, how? One day my mother called me asking, does it bother you that I don't remember the exact date of your birth? I said, no, mother, I love to pull your leg, but I never let go. Come March, and I would be needling my mother. Mother, it is March. Now, do you remember when I was born, Mata? Go on, I will tell you. My mother left us on 31st December 2010. On her passing away, among her papers, we found the blue diary in which she would record a lot of things. Surprisingly, the diary contained the birth dates of several people, their phone numbers, their birthdays, and wedding anniversaries. Each one of these people either received a card or a phone call on these occasions. I saw that diary contained the birth dates of all her children and grandchildren. This time, in front of my name, March 15th had been crossed out, and there was an entry, 18th February. How did she suddenly hit upon the correct date? If she had been alive, perhaps she would have wished me on 18th February. It hurts me that I didn't know she had taken it so seriously. During her illness, before she was admitted to the hospital, she must have consulted the Hindu calendar, calculated the tithi and the date, trying to jog her memory, and sealed it at 18th February. Ela Arun, born 18th February. It may be 15th March on my passport, 15th for my friends, but for me, now on, it will always be 18th February. थैंक यू। तो क्योंकि समय की बहुत कमी है, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से एडिट किया, पर मैं आपको जल्दी से ये बता देती हूँ कि जब मैं बहुत उनको तंग करती थी तो मैं कई बार कहती थी कि भाई आप बच्चों को प्यार नहीं करती हैं, हमको लड़कियों को तो शी सेज कि कांटा इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, खून एक सा ही होता है, दर्द एक सा ही होता है, सब बच्चे प्यारे हैं।
पर जब मैं अपने इसको ढूंढ रही थी और जब इन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहन ने कैसे पता किया कि उनकी एक फ्रेंड थी, बिट्रेस की भी एक फ्रेंड थी जिसकी छोटी बहन उसी दिन पैदा हुई थी जिस दिन मैं पैदा हुई थी, तो उन्होंने 25 भेजा। खैर एक दिन मदर के जाने के पहले मैं जोधपुर में शो करने गई और महारानी साहब ने मुझे इनवाइट किया, तो एक लड़की सामने बैठी थी, उसने कहा कि मैं ही शन्नो की बहन हूँ, छन्नो मन्नो की बहन हूँ, छोटी वाली, और आपकी बहन जानती। मैंने कहा तो फिर आप तन्नो हैं? उन्होंने कहा तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 है। शी सेड नो मेरी 20th है। तो मैंने कहा ये भी गलत हुआ। तब मैंने अपनी मदर को बताया, तब उनका दिमाग बहुत परेशान हो गया, फिर उन्होंने कहा 18। सो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो जाने अनजाने परेशान कर जाती हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। Thank you, that was lovely. Ila, I wanted to ask you, as a beautiful woman who wears so many hats, you grew up in this, numerically rich household with sisters and brothers and chaos of dates and all that. Somewhere along the line, you fell in love with the theater. So I have two questions I wanted to ask you. How did theater come into your life? And then moving on from theater, I notice if in the graph of the plays that you've selected, you've gravitated towards Ibsen. It could have been Shakespeare, it could have been Arthur Miller, it could have been anybody. But somehow there seems to be a link between you and this amazing playwright. How did you immerse yourself in theater? And how did you choose this particular playwright? I must tell everybody that I have a theatre company without any sponsor for last 45 years called Surnai Theatre and Folk Art Foundation. तो थिएटर जैसा आप भी जानती हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस कि ये खुद भी बहुत अच्छी सिंगर हैं और बहुत अच्छी थिएटर एक्ट्रेस भी रही हैं, तो घायल की गति घायल जाने कि थिएटर कैसे। And no sponsors. या नो स्पॉन्सर्स। पढ़ने एक व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं जिनका मैं जिक्र करूँगी। इब्सन मैंने टू कट इट शॉर्ट बिकॉज आपको पढ़ना पड़ेगा। बच्चे तो घर से ही देखिए थिएटर शुरू हो जाता है, जब हम लोग पलंग लगा लेते हैं, गद्दा लगा लेते हैं, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते। तो ये नाटक तो हमारे यहाँ होता था क्योंकि तब वर्कशॉप्स नहीं होती थी, ना ही हमारी माँ के पास पैसा था कि जाओ ये इस वर्कशॉप में चले जाओ, उस वर्कशॉप में चले जाओ। तो वो नाटक होते रहा, फिर स्कूल में शायद अच्छा किया होगा तो जगह बनती चली गई, कुछ नाम होता चला गया। बट जब मैं बॉम्बे आई तो मुझे ऐसा लगा कि जयपुर का जो रविंद्र मंच था या जो मेरा थिएटर के प्रति, आई मस्ट टेल यू दैट आई हैव डन अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन NST नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वहाँ हमें ऋत्विक घटक मिले थे जो कि पहले पेज में है। तो उन्होंने कहा था कि गर्ल बंगाली ठीक कर देना, हाँ तुम्ही स्टेज थाके मरबे, তুমি স্টেজের মধ্যেই মরবে। पहली तो मैं मतलब माँ कह दिया जवान लड़की को, दूसरा कहा मध्य मरबे, तो मुझे लगा ये कर्ज है। बट देन आई रियलाइज कि ये तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग था। अगर मैं स्टेज पे काम करते करते वहाँ मेरी सांस चली जाए तो हे ईश्वर, इससे बढ़ के और कुछ नहीं होगा। तो वही थिएटर कंपनी मैंने चलाई, और इब्सन मैंने इसलिए लिया कि देखिए शेक्सपियर आप ज़्यादा जानती हैं और अंग्रेज़ी में हो रहा था। जब मुझे निसार ने कहा, अपने अलकाजी साहब के दामाद, उन्होंने जब कहा कि थिएटर इन ट्रेडिशन करना है, इब्सन का फेस्टिवल हो रहा है, तो इला तुम्हें ट्रेडिशन मालूम है, तुम करो। तो वो मेरा पहला एक कदम था। आई थॉट कि डायरेक्ट कैसे करूँगी और एडेप्ट कैसे करूँगी, बट आई हैड बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड के रहना, क्योंकि औरतों को ही करना था, विमेन। सो ही सेड यू गो अहेड, मैं पीछे हूँ। पर जब मैंने इब्सन को पढ़ना शुरू करा तो मैंने रियलाइज़ किया कि औरत की आवाज़ को सिर्फ इब्सन ने बाहर लाया है और किसी ने नहीं लाया। रोमांस पे हुआ है, अमीर गरीब पे प्लेस लिखे गए, पर और डॉल्स हाउस देख लीजिए, हेडा गाबलर देख लीजिए, लेडी फ्रॉम द सी देख लीजिए। यू मेंशन अ प्ले औरतों की आवाज़, और मुझे औरतों की आवाज़ को, मैं राजस्थान से हूँ जहाँ औरतें घूंघट में घुटी हैं, तो मेरा प्ले ही लेडी फ्रॉम द सी था। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि देखिए टेक्निकल रिहर्सल इसलिए ज़रूरी होती है, मैं लाई थी, और हमारा एक प्ले हरित यहाँ बैठे हुए हैं
टाटा प्ले पे इन्होंने उसको रिकॉर्ड किया है और बहुत खूबसूरत प्ले है, घोस्ट, पीछा करती परछाई. सो आई थॉट आई विल शो इट टू यू, पर जैसा हमेशा होता है टेक्निकल टीम ने नाक कटा दी, वो नहीं हो पाएगा. आप टाटा प्ले पे जाइए, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर किसी प्ले की वो जर्नी कि पहले उसको आप उनके पर्यावरण से लाएं, उनके एनवायरनमेंट से लाएं. वहाँ की औरत हर जगह एक होती है भाई, चाहे वो नॉर्वे की हो चाहे अंग्रेज़ की हो. 2 साल पहले इब्सन ने जो औरत के बारे में लिखा था, हिंदुस्तान में आज भी वही सवाल खड़ा हुआ है. तो मैंने अगर वो पीछा करती परछाई किया है तो उसमें आपको किले में ये रजवाड़ों पे ईच टाइम यू हैव टू प्लेस इट समवेयर. तो मैंने राजस्थान में भी, बिकॉज राजस्थान की मुझे परख बहुत अच्छी तरह से है, गरीबों की भी है, अमीरों की भी है, रजवाड़ों की भी है, सड़क पे चलते बंजारों की भी है. तो वो प्ले जो है वहाँ औरत ये क्वेश्चन करती है और वो कहती है कि क्या मैं द्रौपदी नहीं हूँ, द्रौपदी नहीं हूँ कि किस हिसाब से कुंती ने कहा जाओ भाई पांचों भाई आपस में बांट लो. मैं कोई खाने की जलेबी हूँ, राबड़ी हूँ, लाडू हूँ, बांट लो बांट लो बांट लो. इस बात पे द्रौपदी बांटी गई. सो दिस इज द मेन क्वेश्चन. माई थिएटर, सुरनाई थिएटर इज द थॉट प्रोवोकिंग थिएटर, जहाँ मैं अपनी सोसाइटी से बात कर सकूँ. टू टॉक टू योर सोसाइटी यू नीडंट हैव टू बी इन द पॉलिटिक्स. एक मीडियम आपको ढूंढना पड़ता है जहाँ आप बात कर सकें. वो कॉमेडी भी हो सकती है, स्टैंड अप कॉमेडी भी हो सकती है, वो प्ले भी हो सकता है. सो दैट्स हाउ आई लव्ड इब्सन. इब्सन मेरे लिए गीता बन चुका है. यानी अरुण कई बार कहता है कि ये थर्ड आदमी स्ट्रेंजर हु इज इन योर लाइफ. सो दैट इज हेनरिक इब्सन. शॉर्ट हाइटेड, 4 feet, बट आई एम इन लव विद हिम. Lovely. And one thing I want to tell you that when Ilaji mentioned she had gone to National School of Drama to do a short course. That's when she met Om, Nasir and everyone. And Alkazi Saab was the director. Everyone considered him God and he was very, very strict. Everyone was scared of him. Even his best of students, star students were scared of him. I remember reading in the book that you went to Alkazi Saab and he said, why don't you complete the 3-year course? So she said, no, I have to finish the 6 months because I have to go back home and I'm getting married. So he said, you are good for nothing, just go get married and have 8 children like your mother did. Then after a few years, she started Surmai Theatre. Then she met Alkazi Saab. Now tell them what you told him. हमारी माँ ने एक कहा था, उनको कल्चर की इम्पोर्टेंस तब पता नहीं थी. तो वो कहती थी कि कल्चर जो है वो दाल में, नाटक वाटक जो भी तुम कर रहे हो गा रहे हो, दाल में नमक की तरह से होना चाहिए. इट शुड नॉट बिकम योर फूड. लीस्ट शी रियलाइज कि हम तो खाते ही उसका है ना भाई. हाँ, नाटक करेंगे तभी हमें पैसा मिलेगा या फिल्म करेंगे. तो जब मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में अलकाजी साहब की पेंटिंग्स का था तो मुझे पता पड़ा अलकाजी साहब है. अलकाजी साहब तो भाई एवरीबडी इज इन लव विद हिम. मैं भाग करके गई तो वो मुझे मिले नहीं. तो मैंने उनकी डायरी में लिख दिया. वो लंच खाने गए थे कि सर आई एम ईला अरुण और मैंने अपनी मदर की तरह से 9 चिल्ड्रन नहीं प्रोड्यूस करें, 10 प्लेस प्रोड्यूस करे हैं एंड 10 प्ले का एडेप्टेशन किया है और 4 प्ले ओरिजिनल लिखे हैं. देन ही केम और डॉटर एक ही करी है जिसको लेके उनको डर था. मेरी ज़िंदगी मैंने थिएटर को ही समर्पित करी है एंड आई एंजॉय द मोस्ट. जबकि मैं कमाती तो अपनी म्यूज़िकल शो से हूँ क्योंकि ऑडियंस वहीं आती है, थिएटर में आती नहीं है. और फिल्में भी हैं, बट थिएटर नथिंग लाइक थिएटर. What a story. Wow, thank you. So now I'm going to pull you out of that because that is a love story that is going on and it will never end. You and I both प्लीज know हमें that. इशारा करिएगा अगर हम ज़्यादा जा रहे हैं तो. एक्चुअली हम लोग 5 मिनट और ले सकते हैं. No, सिर्फ 5 please. No, 1 minute. Let's go very quick. अगर वो नहीं ले सकते तो मेरी जान ले लीजिए. तो भी किताब पढ़ लेना भाई, हम क्या These करें. are very treasured moments. So I want to very quickly, I want to kickstart now. So now theatre is happening. This great love affair. When did the music happen? So because we've got, I want to sum it all up from the शुरुआत to let's say चोली के पीछे. तो भाई शुरुआत तो ये कि क्योंकि जल्दी जल्दी करना है तो मुझे आई हैव टू बी फास्ट. ओके, तो शुरुआत तो
जब छोटी जगह में आप रहेंगे, सब जितने भी यंगर लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अपने कल्चर से जुड़ो। अपने, अगर वो तमाशा होता है, लावणी होती है, अगर आप मराठी हैं या राजस्थानी हैं, मुझे प्लेटर में राजस्थान में फोक म्यूज़िक सुनने को मिला। इसके लिए कान अच्छे होने चाहिए, बस आवाज़ की कोई बात नहीं है, चलेगा। तो वो वहाँ से शुरू हुआ कि मैं फोक पर अड़ी रही, और देखिए फोक का टाइम आज आ गया है। मैं सुना नहीं पाऊँगी, पर चोली मैं एक सेकंड में आपको बताती हूँ। पर वहाँ से फोक हुआ तो ओरिजिनल फोक के मेरे 10 एल्बम निकले, और 10 एल्बम बहुत अच्छे चले। 10 एल्बम फोक के करना आज के ज़माने में मुश्किल है, पर वो चले। और सभी ये बहुत लड़कियाँ जिनको मैं कहूँगी कि आ जाना भी, वाइंड अप पे कर लेना डांस। बट द थिंग इज़ कि वो हुआ, और उसके बाद वर्ल्ड म्यूज़िक आ गया। सो विद माई सन इन लॉ ध्रुव घानेकर, अभी एक गाना आया है चरखा, 8.9 मिलियन चरखा चल रहा है। और चरखे पे सारी ट्रेडिशनल औरतें भी हैं। एक मिनट बाद, ट्रेडिशनल औरतें भी हैं जो डांस के, राजपूत औरतें जो कभी नहीं निकली, उन्होंने चरखे पे आके ग्रूव किया बाकायदा। सो टाइम आता है जब आपको हाथ से हाथ मिलाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि यंगर जनरेशन फोक से जुड़ी रहे तो थोड़ा बदलाव, जैसे कि हम सूफी पे जा रहे हैं तो बदलाव आवश्यक है, वो हुआ। अभी बात आती है चोली पे। छोटी सी बात है कि चोली जब आया तो मैं तो एक्ट्रेस हूँ, मुझे आप कुछ भी करवा लीजिए, आप वंदे मातरम करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, एक्ट्रेस को जो भी करने को कहेंगे। तो जब सुभाष घई ने कहा चोली के पीछे क्या लिखने की, जब लिख रहे थे तो सारे आदमी लोग ना, उनकी बदमाशी थी कि इनका रिएक्शन क्या होगा इलार उनका। तो मैंने लिख दिया चोली के पीछे क्या है, क्योंकि ये तो लिरिक्स हैं भाई। तो अलका गिगल करने लगी, वो शर्माती है यू नो, तो वो गिगल करने लगी। फिर उसके बाद ये गाना आया। गाने के बाद मेरी एक्चुअली लाइनें कम हैं पर आवाज़ भारी, और मैंने ये जो करा ना, तो कोर्ट केसेस मुझ पे आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अलका ने ज़्यादा गाया है, माधुरी पे कोर्ट केस डालो, नीना गुप्ता पे डालो, सबसे बड़ा ये कि सुभाष घई पे डालो। उन्होंने जो चोली उस समय स्टिच की थी वो 30 साल बाद क्रू में भी फिट हो रही है, क्रू फिल्म में चोली फिट हो रही है बाकायदा। सो आई एम नॉट एट फॉल्ट, मेरी आवाज़ ही भारी थी, बस इतनी सी बात। Fabulous. One line, एक लाइन। प्लीज चरखा बजा। अच्छा, टू एंड इट, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। प्ले। नहीं, ये मत बजाना, मैं बता रही हूँ। घाघरा? वोट फॉर घाघरा। for इसके बाद घाघरा। मुझे ये कहना है कि सबसे पहले शेरन, क्योंकि इन्होंने इशारा करा, उसके बाद कुछ सोच समझ में नहीं आ रहा क्या बोला जाए तो सबसे पहले राजस्थानी में मैंने रैप किया था, वो था दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो। जी बिल्कुल। थी मैं खेत में खड़ी, खा रही थी ककड़ी, हूँ कि लाल पकड़ी जो हमारी बाह पकड़ी, मैंने गुस्सा कढ़ाया, उन्हें मारी लकड़ी, उन्हें मूछा घुमाई, मैंने आँखें दिखाई, चोरी क्यों अकड़ी, क्यों मारी लकड़ी, बोली मैं सुन और लाल पकड़ी थी मैं खेत में खड़ी, खा रही थी ककड़ी, तूने बाह पकड़ी, मैंने मारी लकड़ी। फिर काहे होयो, बजा दीजिए। एंड आई वॉन्ट सम गर्ल्स टू कम हियर टू डांस ऑन इट। बजाइए, देखिए गड़बड़, ये पॉज आना ही था। क्या हुआ? और ऐसा बहुत कम होता है इला जी के डांसर्स पहले तैयार होते हैं और म्यूजिक बाद में आता है। देखिए No, but I ये just जादू- want to say, I want few boys Ila also. ji is the female pioneer बजा of दो। rap in Yes, India. 100%. बजा। Ila ji, can we say that you are the female pioneer of rap in India? पहली बार, पहली number बार। 1. Okay, come on everybody, let's go. जोर से। उई उई सब मर गया रे मारो घाघरो जो जोर से बजाओ, वॉल्यूम। बॉयज ऑल्सो, बॉयज। थी मैं खेत में खड़ी, खा रही थी ककड़ी, हूँ कि लाल पकड़ी जो हमारी बाह पकड़ी, मैंने गुस्सा कढ़ो आया, उन्हें मारी लकड़ी, उन्हें मूछा घुमाए, मैंने आँखें दिखाई, फिर काहे होयो। चोरी क्यों अकड़ी, क्यों मारी लकड़ी, Boys are boys, boys. पकड़ी थी मैं खेत में Boys. खड़ी, खा रही थी ककड़ी, तूने बाह पकड़ी, मैंने मारी लकड़ी। तू काय बोली आरा दूर हट जा रे छोरा, दूर हट जा, दूंगी मैं तने ऐसा झटका, दूर हट जा, फिर गली शहर में मारो घाघरा जगने। एक घूमियो। उई उई सब मर गया रे
Come on, boys, आ जाओ। Okay, bye. Thank you. ज्यादा बातें न बना तू जाने में हूँ कौन छोरा मिनिस्टर को दिल्ली मारू टेलीफोन मैं समझ न पाई उनकी हंसी उड़ाई दिल्ली जाके उन्हें मारी Ladies and gentlemen, any questions? ईला जी हैं हमारे साथ। वक्त ठहरेगा आपके लिए। आपने तो कहा खत्म। को एक पे बदल जाएगा। और इला जी क्या? कुछ तो बनता है आपके Please. लिए। नहीं 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 ये आपके लिए। Questions here. कोई भी ईला सवाल जी, हो तो पूछो। आप लड़के पूछेंगे। एक प्रश्न। आप एक्चुअली आप आगे आ जाइए। इला जी, मेरा नाम पंकज कुमार पंत है। देखिए, मेरा भी इंग्लिश में हाथ कहीं बहुत तंग हुआ करता था जब मैं पढ़ता था, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ। हाँ। एक चीज़ बताइएगा, आपने दोनों लिखी है, इंग्लिश और हिंदी। कहते हैं कि जो दिल की भावनाएं हैं वो अपनी मातृभाषा में आती हैं, तो दोनों किताबों में आपकी एक्चुअल जो फीलिंग है वो किस में आई है, हिंदी वाली में कि इंग्लिश वाली में? जाहिर है हिंदी में आई होगी, बट शी डिड फुल जस्टिस। मेरी वो किताब अभी आई नहीं है क्योंकि पब्लिशर ने पहले इंग्लिश कर दी, हिंदी में तो फिर मैं ही हूँ ना। तो पर अंजुला जी ने बहुत न्याय किया, एज शी सेड, कि आपको लगेगी जो अंग्रेजी लोग पढ़ते हैं आपको यही लगेगा जैसे मैं बात करती हूँ वैसे क्या, बट हिंदी हिंदी है, उसमें वो सब लोकोक्तियाँ, वो सब चीज़ें जो मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, हिंदी बहुत क्लिष्ट भाषा है। एक मैं लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप परमिशन दे दो। एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, वो कहते हैं कहत कत परदेसी की बात, बहुत पुराना है। कहत कत परदेसी की बात, मंदर अरध अवधि बदि हमसो, हरि आहार चली जात, ग्रह नक्षत्र वेद जोड़ी करी, यही बना तब खात। ये इतनी क्लिष्ट है, इसका मतलब बताऊंगा तो लेट हो जाऊंगा लगता है नहीं, मुझे। इसलिए आपको बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्लिष्ट हिंदी को साधारण सरल करना पड़ेगा ताकि वो लोग समझ जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ये ठीक है या? ऑडियंस, मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ और इला जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सिर्फ सवाल करो। नहीं, आप वापस आ सकते हैं क्योंकि इला जी वापस 6 बजे इसी हॉल में। नहीं 5 बजे 5 बजे जो सेशन है वो मेरा है ही नहीं। मैं बहुत, आपने ऐसा क्यों कह दिया कि मैं रो पड़ूं, वो मेरे भाई को समर्पित है, तो आप जरूर आइए। अच्छा। पीयूष पांडे जी का सेशन है और भारत जी उसको कर रहे हैं और हरित, ये लोग सब बैठेंगे। मैं हूँ, आप आइए, सुनिए, वो तो चीज़ ही अलग है। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है? एक मैम आपसे पूछना और चाहूँगा ये कि last एक कोई एक्सपीरियंस आपके लाइफ में जिसने आपको आज जो आप जानी मानी हस्ती है वो बनाया है, एक कोई एक्सपीरियंस है? एक तो मैंने मंजिल तय नहीं की थी, मैं बंजारन की तरह से भटक रही थी। आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस, ऐसी कोई चीज़ नहीं, बस यस आई विल टेल यू। शो टाइम एक शो हुआ करता था दूरदर्शन का, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप ना एंकर की तरह थीम है, बात करिए। मैंने कहा बात नहीं करूँगी, मैं गाँव को जानती हूँ, मैं गा के करूँगी। जब मैंने गा के डाके पे भी गाया, चक्की पे भी गाया, चूल्हे पे भी गाया, तो सारे बम्बई प्रोड्यूसर्स की नज़र मुझ पे पड़ गई अपने आप, और फिर काम शुरू हो गया। थैंक यू। मैम एक लास्ट क्वेश्चन। नहीं, माफ Last एक question. लास्ट। मैम, मैं 90s का किड हूँ, आई एम श्योर यहाँ 90s वाले सारे बैठे होंगे और उन सब के जहन में चोली के पीछे का सॉन्ग ने एक गहरी छाप छोड़ी है। वो मैं नहीं कहूँ। अलावा एक कैरेक्टर आपने प्ले किया था फिल्म घातक का, जो एक मेंटली तो अगर रिटार्डेड चोली रहती के है। पीछे मुझे गाने को कहा जी। तो मैं घातक का डायलॉग बोलूंगी, सब मरेंगे, तू भी मरेगा, अरे, सब मरेगा, शुक्रिया। तू भी मरेगा। एक्चुअली ओमपुरी जी मेरे हस्बैंड बने थे, उनको सनी ने मार दिया था और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैं पागल हो गई थी, मैं विधवा थी, तो मैं कहती सब मरेंगे, तू भी मरेगा। एक डायलॉग से आपने याद रखा, थैंक यू। शुक्रिया मैम। Elaji's book is here. We want you to pick it up, read it, get her to sign. Ladies and gentlemen, this is a literary festival. We implore you, please pick up this delightful jewel of a book. Thank you, everybody.